एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ क्लास। आज हम करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इट्स अ चैप्टर इन एनसीईआरटी क्लास 7. We are going to divide this chapter in two parts. The first part is going to cover all the concepts related to congruence of triangles, the different criterias and why the criterias work and why the other criterias don't work, that as well. And in the second part, we are going to discuss all the types of questions that can come from congruence of triangles and how to solve them. So, let's get started. Now in this class, you are studying about congruence of triangles. इसका मतलब दो ऐसे ट्राइंगल जिनकी दो या तीन ऑब्वियसली जिनकी साइड्स तीनों साइड्स और तीनों एंगल एब्सोल्युटली इक्वल है और वो जब आप ओवरलैप करोगे उनके कटआउट्स को एक के ऊपर एक तो वो बिल्कुल टोटली ओवरलैप करेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा साइड्स. दिस इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. Now we have understood the meaning of congruence. Now let's understand one more term. What is the meaning of correspondence? उसके लिए मैं एक फिगर यहां पर बनाती हूं. Let me take an example of a triangle which is A, B and C. Let me say that this is 3 centimeter, this is 4 centimeter and this is 5 centimeter. Now I'll make another triangle which may look like this. And name it PQR. Now the dimensions of this triangle could be, this could be 5 centimeter, this could be 4 centimeter and this could be 3 centimeter. Okay. Now my question here is that are these two triangles congruent? Think about it. If I take a cutout and I try to overlap them, will they overlap completely? Yes, they will because they have the same dimensions. This side is going to overlap this side will overlap this one and this side is going to overlap this one. So can I say that triangle ABC is congruent to triangle PQR? Yes, they both are congruent, but the names that I took were not in correspondence. Now what is the meaning of correspondence? You have to understand that which angle corresponds to which angle. If I say that AB here is equal to this side, then AB is equal to RQ. Okay, so that means A corresponds. This is the sign for correspondence. A corresponds R, B corresponds Q. Okay, and when I say that BC is equal to now B corresponds Q. So BC I am going to write as QP. Okay, and then the third side AC is equal to RQ. So if we have understood the correspondence, we will understand that C corresponds P. Now if I have to write the correspondence in symbol I have written this. I have to write the congruence in symbol. Now this is the sign. ये जो उल्टा S है ना वो हम equal के ऊपर लगा देते हैं. I am going to write triangle ABC is congruent to triangle not PQR. A corresponds R, so it will be RQP. Okay, so it's important to understand the correspondence also because through that only you can find out if the things are congruent or not, and also it helps a lot in writing the correct way of congruence. Okay, I hope these two terms are clear now, the meaning of congruence and the meaning of correspondence also. Now it's time to go to the third important point, which is congruence criteria. Why do we need it? जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, then we know that they are congruent. Why do we need some criteria for it? For the simple fact that we cannot measure all the six things, the three sides and the three angles every time. हम लोग तो मैथ्स कर रहे हैं, अपना काम इजी करते हैं, तो इतना डिफिकल्ट और लेंथी काम कैसे कर सकते हैं? अगर मेरे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो क्या ये पता करने के लिए कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, either I have to cut them or overlap them, and if I don't want to cut them and just find out in the figure, will I have to measure all the three sides and all the three angles all the time? No, I don't have to do that. There are certain criteria which now we have evolved, which say कि आप basically ये तीन चीजें measure कर लो, कोई भी तीन, उन्होंने अलग अलग criteria दिए. अगर ये तीन चीजें इक्वल है तो इसका मतलब बाकी सब कुछ भी इक्वल है.
ऐसा होता है ना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेजर टू थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आप दो शर्ट्स को मेजर कर रहे हो कि ये शर्ट मुझ पे आएगी कि नहीं आएगी, यू आर नॉट गोइंग टू कीप इट कंप्लीटली एंड ओवरलैप इट। आप ज्यादा से ज्यादा उसकी लेंथ चेक कर लेते हो या स्लीव चेक कर लेते हो, एंड देन यू नो कि अब तो फिट हो ही जाएगी, बिकॉज रेस्ट ऑल इज मेड इन द सम रेशियो कि वो आ ही जाएगा। सेम वे वी हैव अ ट्रायंगल, इसमें अगर हम बेसिकली 3 चीजें कर लेते हैं मेजर, तो हम कंफर्म्ड हो सकते हैं दैट बाकी बची हुई 3 चीजें भी आपस में इक्वल ही होंगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अब ये क्राइटेरियाज क्या है? 4 क्राइटेरियाज है हमारे पास। उनमें से सबसे पहला क्राइटेरिया है SSS। SSS मतलब साइड, साइड एंड साइड, यानी कि आपके पास 3 ट्राइंगल्स हैं और अगर उन तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं, इन दोनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था कि मान लो 5, 5, 4, 4, 3, 3 सेंटीमीटर का आपके ट्राइंगल्स हैं, सिर्फ वही दिया था ना, एंगल नहीं बताया था उसमें। दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ SSS। सो मान लो मैंने ये 2 ट्राइंगल लिए ABC एंड MNO, where this side is equal to this side is equal to this side, and BC is equal to NO. Okay, then I can say, तो मैं कंफर्म्ड हूं ऑलरेडी कि ये जो 3 एंगल हैं ये भी आपस में इक्वल ही होंगे। ओके, ऐसा क्यों होगा ये देखने के लिए आई वॉन्ट यू टू सी द वीडियो। वैसे तो हम कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया प्रूव कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से, लेकिन हम करेंगे एक बहुत इजी तरीके से, विच इज कॉल्ड द कॉमन सेंस मेथड। वाई कॉमन सेंस मेथड? बिकॉज कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। मान लो मैं एक ट्राइंगल बनाना चाहती हूँ और उसकी तीनों डायमेंशंस मैंने फिक्स कर दी हैं, और वो है इन पेंसिल्स की लेंथ। अब जब मैं ये ट्राइंगल बनाऊंगी तो क्या इनका एंगल क्या होगा इनके बीच का, वो मैं चूज कर सकती हूँ। वॉट इफ आई वॉन्ट टू मेक दिस एंगल बिगर? कैन आई डू दैट? No, I can't, because then this third length is shorter to fit. इसको फिट करने के लिए मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। क्या मैं इस एंगल को छोटा कर सकती हूँ ऐसे? नहीं, तो ये फिट ही नहीं आएगा इस पेंसिल में। इसका मतलब अगर मुझे इन तीनों पेंसिल से मिलके ट्रायंगल बनाना है तो मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। जैसे मैं ये एंगल चेंज नहीं कर सकती, वैसे ही मैं इस एंगल को भी चेंज नहीं कर सकती और इसको भी चेंज नहीं कर सकती। दैट मीन्स ऑल 3 एंगल्स आर फिक्स्ड। और जब तीनों डायमेंशंस और तीनों एंगल्स फिक्स्ड हैं, तो ये ट्रायंगल चाहे मैं बनाऊं, आप बनाओ या कोई और बनाओ, ऑल द ट्रायंगल्स आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। दैट्स व्हाई SSS ऑलवेज वर्क्स। आई होप समझ में आया कि SSS क्यों काम करता है। नाउ द सेकेंड क्राइटेरिया दैट वी हैव इज SAS। SAS मतलब, आई होप यू कैन मेक आउट नाउ, इट्स साइड, एंगल, साइड। यानी कि कोई 2 ट्राइंगल जो मैं आपको दूं, अगर उनकी एक साइड, एक एंगल और तीसरी साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड, एंगल और इस साइड के बराबर है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। द पॉइंट हियर टू बी रिमेंबर्ड इज दिस, दैट द एंगल इज नॉट सम रैंडम एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द 2 इक्विवेलेंट साइड्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, एंड द एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट इज द एंगल बिटवीन देम एंड नॉट सम अदर एंगल। नाउ दिस इज SAS, where we can confirm that if in 2 triangles the 2 sides and the angle between them is equal, then all other rest of the things, that is the third side and the rest of the 2 angles, are going to be equal, confirmed, and the triangles are going to be congruent to each other. Now can we see that also? Why not? Go ahead. SAS का मतलब जो ट्रायंगल्स हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी 2 साइड्स की डायमेंशंस फिक्स है और उन दोनों डायमेंशंस के बीच का एंगल भी फिक्स्ड है। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरह फिक्स्ड है। तुम्हारे, मेरे, सबके पास यही स्ट्रक्चर है। तो क्या हमारे पास तीसरी साइड के लिए कोई ऑप्शन है? क्या मैं ये वाली साइड चूज कर सकती हूँ? नो, दैट डजंट मेक द ट्रायंगल। क्या मैं ये वाली साइड चूज कर सकती हूँ? नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ी हो गई है। यानी कि कोई ऑप्शन है ही नहीं, मुझे एग्जैक्टली इसी लेंथ की डायमेंशन चूज करनी है। और अगर तीसरी साइड फिक्स्ड ही है तो फिर ऑप्शन है नहीं, तुम, मैं, कोई भी बनाए, तुम, हम सब इसी डायमेंशन की साइड बनाने वाले हैं, एंड दैट मीन्स कि एंगल्स भी फिक्स्ड है।
उसमें भी चॉइस नहीं है। तो जब तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स फिक्स्ड ही हो गए तो यानी कि ये ट्रायंगल कोई भी बनाए इट्स गोइंग टू कम एज कॉन्ग्रुएंट एंड दैट्स व्हाई SAS ऑलवेज वर्क्स। Now the third criteria is ASA, which means angle, side, angle. यानी कि कोई दो ट्रायंगल अगर आप ले लो तो उन दोनों ट्रायंगल में अगर आपको पता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, and the side between them, not some other side, the side between them is also equal, then you can be confirmed without checking that the rest of the angle and the rest of the sides are also going to be equal. Why does that happen? Why is this criteria exist? Check. ASA का मतलब है कि मैंने एक साइड ली और वो फिक्स कर दी और इसके साथ साथ उसके लेफ्ट और राइट में जो एंगल्स बन रहे हैं ना भाई वो भी हमने फिक्स कर दिए। तो अब ये स्ट्रक्चर है तुम्हारे और मेरे पास। क्या तुम और मैं इन दोनों बची हुई डायमेंशंस के लिए कोई अपनी चॉइस की लेंथ चूज कर सकते हैं? क्या तुम यहाँ पर एक लंबी लगाकर यहाँ पर एक छोटी पेंसिल लगा सकते हो? नहीं बाबा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल कब बनेगा? जब मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं और इतनी बड़ी डायमेंशन बनाऊं और यहां पर इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि यहां पर ट्रायंगल को खत्म करना है तो यहां यानी कि बस इतनी डायमेंशन बनाऊं। यानी कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे ये वाली साइड अगर मैं इसको नाम दूं ABC तो AB की डायमेंशन भी फिक्स्ड है और AC की डायमेंशन भी फिक्स्ड है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके बनाते हैं 180 डिग्री। दो एंगल हमें ऑलरेडी दे रखे हैं तो तीसरा एंगल भी फिक्स्ड है। इफ ऑल थ्री एंगल्स आर फिक्स्ड और हमारे पास ये दो डायमेंशंस के लिए कोई चॉइस ही नहीं है, तुम बनाए मैं बनाऊं, ये दोनों सेम ही आने वाली हैं, दैट मीन्स एनी ट्रायंगल विथ इन विच वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन इट्स गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट एंड दैट्स व्हाई ASA ऑलवेज वर्क्स। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो क्राइटेरियाज किए हैं वो क्या है? SSS, SAS और ASA याद रखना, ठीक है। अभी जब हम ये क्राइटेरियाज कर रहे थे उस टाइम में हम एक स्पेशल ट्रायंगल पे पहुंचे। वो स्पेशल ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसमें हमने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री एंगल होता है, तो यानी कि वो वाला एंगल सेम हो गया, ठीक है। इसमें एंगल अगर एक सेम है तो मैं सेकंड वाला क्राइटेरिया देख सकती हूँ SAS, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए, तो SAS लग जाएगा एंड बोथ कैन बी कॉन्ग्रुएंट। बट आई फाउंड आउट वन मोर थिंग दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड्स एंड द हाइपोटेन्यूज हैज अ रिलेशन। द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हेन आई लुक इनटू दैट, इसका मतलब क्या है कि ये साइड्स का हाइपोटेन्यूज के साथ एक रिलेशन है। अगर ये वाली साइड इक्वल है और हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है तो थर्ड साइड कंफर्म्ड वे हैज टू बी इक्वल, क्योंकि इनकी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से उसके साथ रिलेशन बनता है और वो कम या ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। इसीलिए यहां पे SAS रूल थोड़ा सा चेंज हो गया। When I saw that even if the third side, different third side, मतलब एक एंगल इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है और कोई तीसरी ही साइड इक्वल है, इट्स नॉट द साइड अराउंड दिस एंगल जो मैंने SS में समझाया था ना, दो साइड और बीच में एंगल बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई अलग ही साइड आपस में इक्वल है तो भी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ किस में होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसके लिए, इस एक्सेप्शन के लिए हमने एक और क्राइटेरिया बनाया जिसका नाम हमने रखा RHS। RHS की क्या फुल फॉर्म है? R से मतलब है राइट एंगल, H से मतलब है हाइपोटेन्यूस और S से मतलब है कोई भी एक साइड। ये साइड इसके इक्वल हो या ये साइड इसके इक्वल है, इट डजेंट मैटर टू अस, लेकिन कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। राइट एंगल तो वो है ही और हाइपोटेन्यूस आपस में अगर इक्वल है तो भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे।
RHS क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें राइट एंगल फिक्स है और हाइपोटेन्यूज भी फिक्स्ड है एंड वन ऑफ द साइड्स इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो वो कह रहा है कि तीसरी वाली डायमेंशन में कोई चॉइस होएगी नहीं और आप बनाओ मैं बनाओ जी, ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट बनेगा, सबका सेम बनेगा। क्या ये सही है? अब ये थर्ड डायमेंशन को ध्यान से देखो। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो फिलहाल इसकी लेंथ फिक्स्ड है, इतनी जाती है, राइट? क्या इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है? क्या मैं हाइपोटेन्यूज को ऐसे ज्वाइन कर सकती हूँ इसको छोटा करने के लिए? नहीं, तब तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी छोटी हो जाएगी, इतनी करनी पड़ेगी, इजंट इट? हाइपोटेन्यूज की लेंथ तो इतनी नहीं हो सकती छोटी, वो तो हमने फिक्स कर दिया है। चलो ठीक है, अब मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो तुम्हें पता है ये लंबी हो जाएगी, ये तो लंबी हो जाएगी लेकिन हाइपोटेन्यूज भी तो लंबा हो जाएगा। मैंने कहा ना हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, तो अगर हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है तो इसका मतलब वो यहीं पर आके मिलने वाला है, और अगर वो यहीं पर आके मिलने वाला है तो मेरे बेस के लिए एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है, और वो भी सेम ही होगा, चाहे तुम बनाओ चाहे मैं बनाऊं। और ऐसा जब होगा तो एंगल्स भी फिक्स ही होंगे। जब ये हाइपोटेन्यूज हिल ही नहीं सकता तो इन दोनों के बीच का एंगल भी सेम है, और हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर दो एंगल फिक्स है तो तीसरा एंगल भी 100% फिक्स्ड है ही, एंड दैट्स व्हाई RHS ऑलवेज वर्क्स। अभी हमें ये समझ में तो आ गया कि भाई ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज कैसे काम करते हैं, लेकिन मेरा दिमाग शांत नहीं हुआ। मेरा दिमाग पूछता है कि व्हाट अबाउट अदर क्राइटेरियाज? अदर क्राइटेरियाज मतलब व्हाट अबाउट ए एंगल एंगल एंगल, ये क्यों काम नहीं करता? और भी कुछ हो सकता है क्या? यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ, एंड आई रियली वॉन्ट टू चेक वेदर दीज वर्क और नॉट। काम तो करना चाहिए उनको, देखते हैं अगर करते हैं तो, और अगर करते हैं तो इस क्राइटेरिया में शामिल क्यों नहीं है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले समझते हैं कि ए एक कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्यों नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे इजी एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे? मेरे पास ये 3 डायमेंशंस हैं जो कि बिल्कुल इक्वल हैं। अब अगर मैं इनसे एक ट्रायंगल बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और मुझे पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स क्या होते हैं? वो होते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, राइट? ये तीनों डायमेंशंस भी बिल्कुल बराबर हैं, यानी कि अगर मैं इनसे ट्रायंगल बनाऊं तो भी मुझे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मिलेगा, और इस ट्रायंगल की डायमेंशंस भी होंगी क्या? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, राइट? और अगर ऐसा है तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? इनके तीनों एंगल तो बराबर है। नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि तीनों एंगल बराबर होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डायमेंशंस भी दोनों ट्रायंगल की बराबर हो। ऐसा नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई ए नेवर वर्क्स। चलो अब समझते हैं कि SSA या ASS कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं है। साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड मतलब आपको 2 साइड दी गई हैं और कोई तीसरा ही एंगल दिया गया है, नॉट द एंगल बिटवीन देम। अब इस फिगर में अगर मुझे ये एंगल फिक्स कर दिया है, ये साइड फिक्स कर दी है, और ये जो थर्ड साइड यहाँ पर है, नॉट द साइड विच इज बिलो बिकॉज देन इट विल बी साइड एंगल साइड, ये जो थर्ड साइड है वो भी फिक्स करके दे दिए कि भाई आपके पास ये डायमेंशन है, आप इससे बनाइए। तो मैं कैसे बना सकती हूँ? अगर कोई बनाए तो कोई बोलेगा भाई ऐसे बना सकते हो ना तुम, और तुम्हें इस बेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और जब ये साइड फिक्स्ड है तो तुम इसको इतना ही आगे बढ़ाओगे ना। Why can't it be congruent? It should also be fixed. See, this angle is not fixed, and when this angle is not fixed, can I fix the same dimension in some other way? Yes, apparently I can. हम इस साइड को 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, and this actually forms an isosceles triangle here. मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आती हैं इस साइड को लगाने के लिए, एक इधर और एक इधर, और इसीलिए क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन है तो हो सकता है कि मैंने ट्रायंगल ऐसे बनाया हो और यही चीज जब तुम्हें प्रोवाइड की गई है यानी कि SSA तो तुमने ऐसे बनाया हो। यानी कि हम दोनों ही किसी भी तरीके से बना सकते हैं, और अगर हमारे पास इसको बनाने के 2 ऑप्शन है तो हम SSA या ASS को एज अ कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते।
अगर हम इसे नहीं यूज कर सकते तो हम RHS में कैसे यूज कर लेते हैं? RHS में भी तो एक राइट एंगल होता है, एक साइड होती है और हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि एक तीसरी साइड होती है। तो ये भी तो साइड साइड और यहां पर एंगल है, एंगल साइड साइड या SSA। यस यू आर राइट, यहां पर भी वो ऑप्शन है, लेकिन ये सारा कमाल इस 90 डिग्री की वजह से होता है। अगर यहां पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो यहां पर भी बनता है और वो बनता है यहां पर। और ये जो हमारी एक साइड ऑफ द ट्रायंगल है ना, ये इसके एल्टीट्यूड की तरह काम करती है। एंड दैट्स व्हाई RHS इज अ डिफरेंट criteria altogether and SSA and ASS never works. अब एक्सप्लोरेशन के लिए बचा है AAS या SSA, मतलब आपके लिए कोई एक साइड फिक्स कर दी और बाकी दोनों एंगल जो है वो फिक्स कर दिए। ये वाली साइड और ये वाली साइड फिक्स नहीं है, लेकिन क्या ये वर्क करता है? इट इज वेरी सरप्राइजिंग बट इट वर्क्स। यानी कि अगर इसको हम थोड़ी दूसरे नजरिए से देखें तो अगर ये एंगल और ये एंगल फिक्स्ड है, मान लो ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तीसरा एंगल क्या होगा? थर्ड एंगल इज गोइंग टू बी 80 डिग्री बिकॉज द सम ऑफ ऑल थ्री इज 180 डिग्री। और अगर ये एंगल फिक्स्ड है और ये भी एंगल फिक्स्ड है तो ये तो ASA ही बन गया ना। हाँ, that's why we do not have a separate criteria for AAS and SSA because it is same as ASA, but it does work. अभी समझ में आ गया कि बाकी क्राइटेरिया क्यों एग्जिस्ट नहीं करते और हमारे पास 4 ही क्राइटेरिया है। गुड टू नो, मजा आया। एनीवे, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने समझा कि कॉन्ग्रुएंस का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। आज हमने समझा कि कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मीनिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भी एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हो तो कॉन्ग्रुएंट साइड्स ही लिखना, रैंडम नहीं लिखने हैं कोई भी डायमेंशंस। और हमने ये भी सीखा कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंस, जो कि है 4, SSS, SAS, ASA और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया विच इज RHS। और हमने ये भी देखा कि बाकी क्राइटेरिया काम नहीं करते कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने में। ओके, दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। We are going to study what type of questions come and how can we solve them in this chapter in the next part. If you like this video, then please show your support by pressing on the like button and subscribe, please. And the bell icon will tell you whenever the video pops up. Okay? I hope you like it. See you next time. Bye-bye.